Well, students, today we are going to talk about nomination of candidates. आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा ना? हाँ, okay. I have listened. रजनीश वर्मा present. Nomination of candidates. ठीक है? We noted above that in democratic election, people should have a real choice. डेमोक्रेटिक इलेक्शन में लोग क्या चाहते हैं कि हमें अपने पसंद का हमारा कैंडिडेट हो, है ना? हमारी रियल चॉइस मिलनी चाहिए, हमें हमारा जो लीडर यहाँ से इलेक्ट हो वो हमारी चॉइस का हो. So this happens only when there are almost no restrictions on anyone to contest an election. ये तभी होगा जब nobody is restricted, nobody is banned or nobody is forced to contest election. Means everybody should be given fair chance to elect, means get elected or contest election. So this is what our system provides. Democratic system provides the same thing. Electoral politics, it provides the system in which there is no restriction, there is no force to anybody, means anyone can contest election, right? So anyone who can be a voter can also become a candidate in election. Everybody has right to vote, so everybody has also right to become a candidate in election. Means nobody can, uh, you can say they cannot be deprived of becoming a candidate. The children, the only difference is that in order to be a candidate the minimum age is 25 years. कैंडिडेट बनने के लिए कम से कम 25 years का एज होना चाहिए. You must have the age of minimum age of 25 years, and while it is only 18 years for being a voter. अगर आपको वोट डालना है तो आपकी एज 18 मिनिमम होनी चाहिए. एंड इफ यू वांट टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन, यू वांट टू स्टैंड फॉर इलेक्शन, देन योर एज मस्ट बी 25. okay, it should be 25 or more. So there are some other restrictions on criminals etc. criminals पे कुछ restriction रहता है. criminals एकदम खुलेआम इलेक्शन नहीं लड़ सकते हैं. they have to get permission from election commission, but these apply in very extreme cases. ये क्या है, बहुत ही extreme cases में apply होता है. clear? yes, these apply in very extreme cases. Political okay, students are joining, so we are coming to point. Means political parties nominate their candidates who get the party symbol and support. Understand? Every political parties nominate their candidate. They used to give tickets to such parties who are, who wants to join, who wants to become a candidate from that particular party. तो वो party's nomination is often called party ticket. Means party nominate a candidate that such person will stand for the election from Akbarpur Ambedkar Nagar. Though so he has got ticket from that party. Parties are there like Bharatiya Janata Party, Samajwadi Party, Bahujan Samajwadi Party. They gives ticket, means they makes a nomination of that candidate. So every person who wishes to contest an election has to fill a nomination form. जिसको भी इलेक्शन में खड़े होना है उनको एक नॉमिनेशन फॉर्म भरना है. okay, and give some money as security deposit. They have to give some money as a security deposit. There is a nomination charge that we have to give to the candidates. Recently a new system of declaration has been introduced on direction from the Supreme Court. Supreme Court has given special direction that during election there should be a declaration. Every candidate have to fill up a declaration form, otherwise he is unable to contest election. So every candidate has to make a legal declaration giving full details. सबको अपना फुल डिटेल देना पड़ेगा, लीगल डिक्लेरेशन देना पड़ेगा, वैधता अपनी ये प्रमाणित करना है कि वो क्रिमिनल नहीं है, ही इज़ अ लीगल पर्सन. ओके, सो फर्स्ट कंडीशन क्या होनी चाहिए, सीरियस क्रिमिनल केसेस पेंडिंग अगेंस्ट द कैंडिडेट.
कहीं उस कैंडिडेट पे कोई सीरियस केसेस तो नहीं चल रहे हैं, कोई बहुत ज़्यादा तगड़ा मुकदमा तो नहीं चल रहा है, उसको उसमें लिखना पड़ेगा फॉर्म में कौन कौन से उसके ऊपर केसेस चल रहे हैं। फिर डिटेल्स ऑफ द एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ द कैंडिडेट एंड हिज और हर फैमिली। तो उस कैंडिडेट को बताना पड़ेगा उसकी कितनी पूंजी है, उसके पास कितने बीघा खेत है, उसके पास कितनी बिल्डिंग्स है, उसके पास कितनी कार है, उसका कितना फिक्स डिपॉजिट है, और उसकी लाइबिलिटीज़ क्या है, मतलब कितना उसके ऊपर कर्जा है। ओके, एवरीथिंग ही हैव टू टेल। And third one is educational qualification of the candidate. Candidate have to fill his educational qualification, whether he is graduate or he is postgraduate or only high school pass or only 12th pass. So this information has to made public. ये information public के सामने आती है, information इंटरनेट पे डाउनलोड हो जाता है, कोई भी देख सकता है। So this provides an opportunity to the voters to make their decision on the basis of the information provided by the candidates. तो ये क्या है, ये एक अपॉर्चुनिटी है वोटर्स के लिए, ठीक है, कि वो डिसीजन ले सकता है इजीली इनके सारे लेखा जोखा देख के कि कहीं क्रिमिनल केस तो नहीं इसके ऊपर, या इसके ऊपर कर्जा तो नहीं है ना, बहुत ज़्यादा पैसे वाला तो नहीं है, या इसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बहुत पुअर है। इस बेस पे हम निर्णय ले सकते हैं कि टू हुम वी शुड कास्ट वोट, हम किसे वोट दें, है कि नहीं। सो नाउ इस एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की बात कर ली जाए। क्या कैंडिडेट्स का एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फिक्स होनी चाहिए, जैसे नौकरी के लिए होता है कि इस पोस्ट के लिए ये क्वालिफिकेशन हो, इस पोस्ट के लिए ये क्वालिफिकेशन हो, तो इलेक्शन में भी कैंडिडेट्स मस्ट हैव some qualification. Why is there no educational qualification for holding such an important position? मंत्री लोगों को इतना इंपॉर्टेंट पोजीशन होल्ड करना है, फिर भी कोई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन नहीं रखी गई है। वैन सम काइंड ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इज नीडेड फॉर एनी अदर जॉब, जबकि और नौकरियों में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगता है। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आर नॉट रेलिवेंट टू ऑल काइंड्स ऑफ जॉब्स, और हर तरह की नौकरी के लिए एक जैसा क्वालिफिकेशन नहीं होता है, सबका अलग अलग क्वालिफिकेशन। सो द रेलिवेंट क्वालिफिकेशन फॉर सिलेक्शन टू द इंडियन क्रिकेट टीम, जैसे इंडियन क्रिकेट टीम में सेलेक्ट होना है तो उसका अलग क्वालिफिकेशन। फॉर एग्जांपल, इट इज़ नॉट द अटेनमेंट ऑफ एजुकेशनल डिग्रीज। अब भाई क्रिकेटर के लिए कोई ज़रूरी नहीं कि वो डिग्री हो उसके पास, बट द एबिलिटी टू प्ले क्रिकेट वेल, उसको क्रिकेट खेलना आना चाहिए, ये उसकी क्वालिफिकेशन है। Similarly, the relevant qualification for being an MLA or MP is the ability to understand people's concerns. MP MLA बनने के लिए एक क्वालिफिकेशन होनी चाहिए ताकि जो है लोग समझ सके कि ये हमारा MP MLA कितना क्वालिफाइड है। प्रॉब्लम्स एंड टू रिप्रेजेंट देयर इंटरेस्ट, किस तरह से प्रॉब्लम को डील कर सके और किस तरह से अपने इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करें। सो वेदर दे कैन डू और so or not is examined by lakhs of examiners. उसको लाखों एग्जामिनर जो है एग्जामिन करते हैं, ठीक है। वो एग्जामिनर कौन है, वोटर, जिनको वोट देना, वो एग्जामिन उनकी परीक्षा ले रहे हैं। आफ्टर एवरी 5 ईयर वो उनको रिजेक्ट भी कर सकते हैं। सो इवन इफ एजुकेशन वाज रेलिवेंट, इट शुड बी लेफ्ट टू द पीपल टू डिसाइड हाउ मच इम्पोर्टेंस दे गिव टू एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ठीक है। भले ही एजुकेशन जरूरी है, लेकिन अब ये पीपल के ऊपर डिपेंड करता है, उसको डिसाइड करना है कि इस पोस्ट के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन इम्पॉर्टेंट है या नहीं, है ना। सो इन आवर इकोनॉमी, इन आवर कंट्री, पुटिंग एन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वुड गो अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी फॉर येट अनदर, क्लियर। तो वो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अब ये पीपल पे डिपेंड करता है कि उसको ज़्यादा क्वालिफाइड आदमी चाहिए या कम क्वालिफाइड आदमी चाहिए, है कि नहीं। यही हम लोग पढ़ रहे थे। इन आवर कंट्री पुटिंग एन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वुड गो अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, ये हमारी डेमोक्रेसी के स्पिरिट के अगेंस्ट है अगर हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, क्योंकि हमारे वोटर खुद ही इतने ज़्यादा हाईली क्वालिफाइड नहीं है ना। It would mean depriving a majority of the country's citizens the right to contest election, है ना। अगर वोट देने के लिए क्वालिफिकेशन हो जाए और इलेक्शन कैंडिडेट के लिए क्वालिफिकेशन हो जाए, तो हमारे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इलेक्शन लड़ ही नहीं पाएंगे और बहुत सारे लोग जो है वोट नहीं दे पाएंगे, इसलिए क्वालिफिकेशन होना सही नहीं है। ओके, a graduate degree like BA, BCom or BSc was made compulsory for candidates and more than 90% of the citizens will become ineligible.
अगर हम BA BCom BSc कंपलसरी कर दें हर कैंडिडेट के लिए, तो हमारे कंट्री के 90% सिटीजन तो इलेक्शन लड़ ही नहीं पाएंगे। इसीलिए हम क्वालिफिकेशन को मैंडेटरी नहीं करते हैं, मतलब कंपलसरी नहीं करते हैं। समझ में आया सबको? एंड वी आर कमिंग टू नेक्स्ट पेज। ये है आपका इलेक्टोरल रोल। ठीक है, आपकी बुक में ये प्रिंटेड है। ये इलेक्टोरल रोल होता है, जो आदमी इलेक्शन लड़ता है उसको यही फॉर्म भरना पड़ता है। ठीक है, ये 2018 का स्टेट यस 16 फॉर्म है मिजोरम। ठीक है, वहाँ का इलेक्टोरल रोल है। यहाँ आप देख रहे हैं सबसे ऊपर नेम एंड रिजर्वेशन स्टेटस ऑफ, ये है नेम ऑफ रिजर्वेशन स्टेटस मिजोरम। ईयर ऑफ रिवीजन, वो हमारा वोटर लिस्ट कितने कब रिवाइज हुआ, पोलिंग स्टेशन। ठीक है, फिर नंबर ऑफ इलेक्टर्स, कितने लोग जो है चुनाव में खड़े हुए। ठीक है, तो ऐसे ऐसे करके जो है एक हमारा ये फॉर्म होता है। राइट, इट इज़ फॉर योर जनरल इंफॉर्मेशन। क्लियर? नाउ वी आर कमिंग टू नेक्स्ट पेज, दैट इज हियर। अगला टॉपिक हम लेते हैं। उससे पहले हम देखो ऊपर दिया मैच द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ आवर इलेक्टोरल सिस्टम विथ प्रिंसिपल्स दे रिफ्लेक्ट। ठीक है, तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी किसके लिए होगा? एवरीवन हु इज 18 ईयर्स ऑफ एज और ओल्डर हैज राइट टू वोट, है कि नहीं? जिसकी उम्र 18 ईयर हो गई है तो वो उसको मतलब ही इज एलिजिबल, ही हैज राइट टू वोट, वो वोट डाल सकता है। ठीक है, फिर रिप्रेजेंटेशन ऑफ वीकर सेक्शन। राइट, तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ वीकर सेक्शन का मतलब क्या हो गया? रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, ये इससे मैच खाएगा। फिर ओपन पॉलिटिकल कंपटीशन मीन्स ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी, नहीं, एनी वन कैन फॉर्म अ पार्टी और कॉन्टेस्ट इलेक्शन, ये ओपन पॉलिटिकल कंपटीशन। एंड वन वोट वन वैल्यू, तो ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी इज रफली द सेम पॉपुलेशन, इसमें आता है। सो इन दिस मैनर वी कैन मैच द प्रिंसिपल्स विद द फीचर। अब बात करते हैं इलेक्शन कैंपेन। इलेक्शन कैंपेन में चुनाव प्रचार, जो हमारा चुनाव के लिए जब चुनाव होने लगता है तो लोग घर घर जा कर के, जो भी कैंडिडेट्स हैं, अपने जितने भी लोग हैं सबसे मिलने जाते हैं और अपनी पॉलिसीज़ को बताते हैं, अपने एजेंडा को बताते हैं, उनका क्या प्रोग्राम है लोगों के सामने रखते हैं। ठीक है, अपनी उनकी पार्टी की पॉलिसी क्या है, किस पार्टी से वो जुड़े हैं, उसका सिंबल क्या है, कहाँ उनको वोट डालना है, कहाँ पे अंगूठा लगाना है। So the main purpose of election is to give people a chance to choose the representatives. हमारे इलेक्शन का मेन उद्देश्य क्या है कि पीपल जो है अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज कर सकते हैं, उनको एक मौका मिले, एक चांस मिले। सो द गवर्नमेंट एंड द पॉलिसीज दे प्रीफर, और मतलब वो जिस तरह की सरकार चाहते हैं, जो पॉलिसी चाहते हैं, ऐसे लोगों को रिप्रेजेंट मतलब चूज कर सके, उसका मौका देता है इलेक्शन। So therefore it is necessary to have a free and open discussion about who is a better representative. और इस तरीके से ये जरूरी हो जाता है कि फ्री होकर के ओपन डिस्कशन के साथ हम अपना बेटर रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करें। कौन बेटर है उसको हम चुनें। विच पार्टी विल मेक अ बेटर गवर्नमेंट और व्हाट इज़ गुड पॉलिसी, कौन सी पार्टी अच्छी सरकार दे सकती है और किस पार्टी की पॉलिसी यानी नीतियाँ अच्छी हैं। तो दिस इज़ व्हाट हैपन्स ड्यूरिंग इलेक्शन कैंपेन, यही इलेक्शन कैंपेन में होता है। सो इन आवर कंट्री सच कैंपेन्स टेक प्लेस फॉर अ 2 week period between the announcement of the final list of candidates एंड द डेट ऑफ पोलिंग। जिस दिन लिस्ट कैंडिडेट की लिस्ट फाइनल हो जाती है उस दिन से लेकर के, ठीक है, 2 हफ्ते तक यानी 14 डेज तक, यानी जब चुनाव होने वाला है, इस बीच लोग इलेक्शन कैंपेन करते हैं, चुनाव प्रचार करते हैं, अपने अनाउंसमेंट्स करते हैं। ठीक है, ड्यूरिंग दिस पीरियड द कैंडिडेट्स कॉन्टैक्ट देयर वोटर्स, किससे किससे उसको वोट मिलने की उम्मीद है उनसे कॉन्टैक्ट करते हैं, उनके संपर्क में जाते हैं। पॉलिटिकल लीडर्स एड्रेस इलेक्शन मीटिंग्स, जो लीडर है उनके पार्टी के हेड, वो लोग मीटिंग ऑर्गेनाइज करते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज मोबिलाइज देयर सपोर्टर्स, उनके जितने भी सहयोगी है, सपोर्टर हैं, उनको जो है कहते हैं तुम इधर जाओ उधर जाओ, मतलब मोबिलाइज करते हैं, उनको अलग अलग डायरेक्शन में भेज करके अपनी पॉलिसी को लोगों के बीच में रखते हैं। सो दिस इज ऑल्सो द पीरियड व्हेन न्यूज़पेपर्स एंड टेलीविजन न्यूज़ आर फुल ऑफ इलेक्शन रिलेटेड स्टोरीज एंड डिबेट्स। और इसी 14 दिन के भीतर पूरा टीवी में बम्पर प्रचार आता है, हर पार्टीज अपनी स्टोरीज बताती हैं, अपनी पॉलिसीज़ बताती हैं, डिबेट करते हैं, बहस करते हैं।
बट इलेक्शन कैंपेन इज नॉट लिमिटेड टू दिस 2 वीक्स ओनली। इलेक्शन कैंपेन केवल इन्हीं 2 हफ्तों के लिए लिमिटेड नहीं है। पॉलिटिकल पार्टीज स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर इलेक्शन मंथ बिफोर। जो बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो 1 महीना पहले से ही अपना जो है कैंपेन स्टार्ट कर देती हैं। तो यहाँ पे पूछ रहा हाउ वाज द इलेक्शन कैंपेन इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंसी इन द लास्ट लोकसभा इलेक्शन। पिछले लोकसभा इलेक्शन में हमारे यहाँ कैसे इलेक्शन कैंपेन हुआ था। प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ व्हाट द कैंडिडेट एंड पार्टी सेड एंड डिड। लिस्ट बनाओ कि अलग अलग पार्टियाँ क्या कहती थी उस समय इलेक्शन के टाइम, ठीक है, और क्या करती थी। So in election campaigns, political parties try to focus public attention। जनता का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करते थे। उसको भी बड़े बड़े इश्यूज पर लोगों का ध्यान ले जाते थे कि आपके यहाँ ये समस्या, आपके यहाँ ये नहीं है, आपके यहाँ वो नहीं है। So they want to attract the public to that issue and get them to vote for their party on that basis। Okay, so means they try to attract public on the basis of that issue so that people have a faith, they gets attracted on that candidate and make up their mind for voting them। Clear? Let us look at some of the successful slogans। लोग स्लोगन लोगों ने बना दिया था, नारेबाजी करते। जैसे कांग्रेस पार्टी इंदिरा गांधी के टाइम में, जब इंदिरा गांधी लीडर थी कांग्रेस की, उनका स्लोगन था गरीबी हटाओ, रिमूव पॉवर्टी। 1971 का जब लोकसभा इलेक्शन हुआ था तब इंदिरा गांधी जी ने ये स्लोगन दिया था, गरीबी हटाओ, इंग्लिश में रिमूव पॉवर्टी। क्लियर? द पार्टी प्रॉमिस टू रीओरिएंट ऑल द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट टू रिमूव पॉवर्टी फ्रॉम द कंट्री। इस पार्टी ने डिसाइड किया था, प्रॉमिस किया था पब्लिक से कि हम ऐसी पॉलिसी बनाएंगे कि जिससे हमारी कंट्री से पॉवर्टी यानी गरीबी जड़ से खत्म हो जाए। दूसरा है सेव डेमोक्रेसी। ये स्लोगन किसका था? जनता पार्टी का, जब जयप्रकाश नारायण जो थे यहाँ के लीडर थे, ठीक है। लोकसभा इलेक्शन 1976-7 में हुआ था, 1977 में। उस समय ये सेव डेमोक्रेसी का नारा किसने दिया? जयप्रकाश नारायण, ठीक है। एंड इन्होंने क्या कहा? द पार्टी प्रॉमिस्ड और अंडू द एक्सेसेस कमिटेड ड्यूरिंग इमरजेंसी। जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाया था जिससे लोगों पे बहुत समस्याएं आई थी, लोग परेशान हो गए थे, बहुत लोग मर गए थे, तो उन्होंने कहा कि हम सिविल लिबर्टी लाएंगे, लोगों को आज़ादी देंगे, समाज में मुक्ति प्रदान करेंगे, और जो इमरजेंसी की वजह से समस्या खड़ी हुई थी उसको हम ख़त्म करेंगे। सो द लेफ्ट फ्रंट यूज द स्लोगन ऑफ लैंड टू द टिलर। हर व्यक्ति को जमीन दो। ये वेस्ट बंगाल असेंबली इलेक्शन का नारा था 1977 में लेफ्ट फ्रंट का। फिर प्रोटेक्ट द सेल्फ रिस्पेक्ट ऑफ द तेलुगुज। जो तेलुगुज लोग थे, ठीक है, उनके सेल्फ रिस्पेक्ट, उनके स्वाभिमान की रक्षा करो, ठीक है, उनका स्वाभिमान बचाओ। इट वाज द स्लोगन यूज्ड बाय एन.टी. रामाराव, ठीक है, ये एक फिल्म एक्टर थे। द लीडर ऑफ द तेलुगु देशम पार्टी। आंध्र प्रदेश में एक पार्टी थी जिसका नाम था तेलुगु देशम पार्टी, उसके लीडर थे एन.टी. रामाराव। उन्होंने अपने आंध्र प्रदेश असेंबली इलेक्शन में 1983 में ये नारा दिया था कि प्रोटेक्ट द सेल्फ रिस्पेक्ट ऑफ द तेलुगुज। सो इन अ डेमोक्रेसी इट इज़ बेस्ट to leave political parties and candidates free to conduct their election campaigns the way they want to। डेमोक्रेसी में सबसे अच्छा है कि पॉलिटिकल पार्टी पे छोड़ दो, कैंडिडेट पर छोड़ दो कि अब उसका कंडक्ट क्या है, उसका व्यवहार कैसा है, वो अपना इलेक्शन कैंपेन कैसे कराना चाहता है, कैसे चाहता है, उसके ऊपर छोड़ देते हैं। बट इट इज़ समटाइम्स नेसेसरी टू रेगुलेट। लेकिन कभी कभी ज़रूरी हो जाता है इस पर नज़र रखना, है ना। सो हियर इलेक्शन कैंपेन्स को रेगुलेट करना जरूरी हो जाता है, बिकॉज एवरी पॉलिटिकल पार्टी एंड कैंडिडेट गेट्स अ फेयर एंड इक्वल चांस टू कम्पीट, ताकि हर व्यक्ति को अच्छा मौका मिले कंपटीशन करने का। अकॉर्डिंग टू आवर इलेक्शन लॉ, हमारे इलेक्शन कमीशन का एक लॉ है कि नो पार्टी और कैंडिडेट कैन ब्राइब और थ्रीटेन वोटर्स। कोई भी कैंडिडेट, किसी भी पार्टी का कैंडिडेट वोटर्स को कभी भी रिश्वत नहीं दे सकता, ठीक है। ही कैन नॉट ब्राइब, ब्राइब मतलब रिश्वत देना, और थ्रीटेन वोटर्स, किसी भी वोटर को धमकी नहीं दे सकता। अपील टू देम इन द नेम ऑफ कास्ट और रिलीजन। कभी भी हम किसी जाति के आधार पर या धर्म के आधार पर कोई भी घोषणा नहीं कर सकते।
यूज गवर्नमेंट रिसोर्सेज फॉर इलेक्शन कैंपेन। कोई भी कैंडिडेट अगर वो पहले से कोई मंत्री है तो सरकारी जो है संसाधन, सरकारी रिसोर्सेज का उपयोग नहीं कर सकता है। स्पेंड मोर देन ₹25 लाख इन अ कॉन्स्टिट्यूएंसी फॉर अ लोकसभा इलेक्शन और ₹10 लाख इन कॉन्स्टिट्यूएंसी इन एन असेंबली इलेक्शन। 25 लाख तक ही आप खर्च कर सकते हैं चुनाव इलेक्शन में अगर लोकसभा का है, और 10 लाख रुपीज़ आप कॉन्स्टिट्यूएंसी इलेक्शन में खर्च कर सकते हैं। इफ़ दे डू सो, अगर ऐसा करते हैं तो देयर इलेक्शन कैन बी रिजेक्टेड, उनका जो है इलेक्शन रिजेक्ट हो जाएगा, उनको भगा दिया जाएगा बाय द कोर्ट। जो है, जो हमारा कोर्ट है वो उनको हटा देगी, भले ही दे हैव बीन डिक्लेयर्ड इलेक्टेड, भले वो चुन लिए गए हैं, अगर पता चल गया उन्होंने ऐसा किया है तो उनका पद छीन जाएगा। So, in addition to the laws, all the political parties in our country have agreed to a model code of conduct. तो हमारे जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है और जो हमारा इलेक्शन कमीशन है, इनके बीच में एक समझौता हुआ है। उन्होंने एक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट पर सहमति जताई। उन्होंने कहा कि हर एक निर्धारण होना चाहिए, कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए इलेक्शन के लिए। और अकॉर्डिंग टू दिस नो पार्टी और कैंडिडेट कैन यूज, ठीक है, एनी प्लेस ऑफ वर्शिप फॉर इलेक्शन प्रोपेगेंडा। कोई भी व्यक्ति, किसी भी पार्टी का हेड, वो कभी भी जो है पूजा स्थल, वहाँ पर जो है कोई इलेक्शन का काम नहीं कर सकता है, कोई भी वहाँ पे मीटिंग नहीं कर सकता है। क्लियर? सो हियर दूसरा कोड ऑफ कंडक्ट है, यूज गवर्नमेंट व्हीकल्स, एयरक्राफ्ट्स एंड ऑफिशियल्स फॉर इलेक्शंस एंड, ठीक है, मतलब कोई भी कैंडिडेट सरकारी जो है गाड़ी, सरकारी व्हीकल्स का प्रयोग नहीं कर सकता, गवर्नमेंट के एयरक्राफ्ट का यूज़ नहीं कर सकता है, ठीक है, और किसी ऑफिस का यूज़ नहीं कर सकता इलेक्शन में। एंड वंस इलेक्शंस आर अनाउंस्ड, एक बार इलेक्शन की घोषणा हो गई तो मिनिस्टर शैल नॉट ले फाउंडेशन स्टोन्स ऑफ एनी प्रोजेक्ट। कोई भी मंत्री जो है किसी भी जो है चीज़ का मतलब फाउंडेशन नहीं कर सकता है, किसी का शिलान्यास नहीं कर सकता है। टेक एनी बिग पॉलिसी डिसीजन, कोई बड़ा पॉलिसी डिसीजन नहीं ले सकता उस समय। और मेक एनी प्रोमिसेज ऑफ प्रोवाइडिंग पब्लिक फैसिलिटीज, उस समय कोई ये भी वादा नहीं कर सकता है कि हम जनता को ये देंगे वो देंगे। जब एक बार इलेक्शन आपका अनाउंस हो गया, सब बंद। सो पोलिंग एंड काउंटिंग ऑफ वोट्स की बात कर लेते हैं। क्लियर? पोलिंग एंड काउंटिंग ऑफ वोट्स, हमारा चुनाव कैसे होता है, कैसे वोटिंग होती है और कैसे वोट को काउंट किया जाता है। दैट इज़ द फाइनल स्टेज ऑफ एन इलेक्शन, यही हमारे इलेक्शन का फाइनल स्टेज है। दैट इज़ द डे व्हेन द वोटर्स कास्ट और पोल देयर वोट, जिस दिन वोटर वोट डालते हैं, दैट इज़ फाइनल स्टेज ऑफ एन इलेक्शन, आखिरी स्टेज होता है। दैट डे इज़ यूजुअली कॉल्ड द इलेक्शन डे, इस दिन को हम इलेक्शन डे कहते हैं, जिस दिन हम वोट डाल के आते हैं। सो एवरी पर्सन हुज नेम इज़ ऑन द वोटर्स लिस्ट, हर व्यक्ति जिसका नाम वोटर्स लिस्ट में है, कैन गो टू अ नियर बाई पोलिंग बूथ, वो पास के पोलिंग बूथ पे जा सकता है, जो कि किसी लोकल स्कूल में बना होता है पोलिंग बूथ, या किसी गवर्नमेंट ऑफिस में बना होता है। सो वंस द वोटर गोज इनसाइड द बूथ, एक बार वोटर चला गया अंदर, द इलेक्शन ऑफिशियल्स आइडेंटिफाई हर, तो इलेक्शन के जितने भी कर्मचारी हैं, ऑफिशियल्स हैं, वो उसको पहचान लेते हैं। क्लियर? आइडेंटिफाई कर लेते हैं। पुट अ रिमार्क ऑन हर फिंगर, उसके फिंगर पे एक मार्क लगा देते हैं जो मिटता नहीं है जल्दी। एंड अलाउ हर टू कास्ट हर वोट, और उसको वोट देने के लिए इजाज़त दे देते हैं, अलाउ कर देते हैं। सो एन एजेंट ऑफ ईच कैंडिडेट इज अलाउड टू सिट इनसाइड द पोलिंग बूथ, हर कैंडिडेट का एक एजेंट वहाँ रहेगा ताकि लोगों को कोई प्रॉब्लम हो तो उसको सॉल्व कर सके। He is allowed to sit inside the polling booth and ensure that the voting takes place in a fair way, और वहाँ देखेगा कहीं धांधलेबाजी तो नहीं हो रही, साफ सुथरा वोटिंग हो रहा ना। सो आर इलेक्शंस टू एक्सपेंसिव फॉर आवर कंट्री, अब एक इन्होंने टॉपिक दिया है, क्या इलेक्शन हमारा जो है बहुत महंगा है, हमारी कंट्री में स्पेशली इंडिया में इलेक्शन बहुत महंगा पड़ जाता है। कहते हैं अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी इज स्पेंट इन कंडक्टिंग इलेक्शंस इन इंडिया, इंडिया में इलेक्शन कराने में बहुत पैसा लगता है। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट स्पेंट अबाउट
3,500 करोड़ सरकार का 3.5 करोड़ रुपया खर्च होता है लोकसभा इलेक्शन कराने में। कितने सारे कर्मचारी की ड्यूटी लगती है, सबको पैसा देना पड़ता है। तो 3,500 करोड़ रुपीज़ जो है हमारे इलेक्शन में खर्च होते हैं। एंड दैट वर्क्स आउट टू अबाउट 40 पर पर्सन ऑन वोटर्स लिस्ट। अगर इसको देखा जाए तो एक वोटर लिस्ट के सर पे 40 रुपए का खर्चा आता है। गवर्नमेंट देती है ये पैसा, कोई और नहीं देने जाता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इट गिव्स दिस मनी। ओके, so the amount spent by parties and candidates was more than what the government spent। यानी कि जो कैंडिडेट पैसा खर्च करता है इलेक्शन के लिए, उससे कहीं ज़्यादा गवर्नमेंट खर्च करती है। यानी रफली स्पीकिंग द एक्सपेंडिचर मेड बाय गवर्नमेंट और पार्टीज एंड कैंडिडेट्स वाज अराउंड 30 करोड़। अगर पार्टीज़ का जो है खर्चा ले लें, गवर्नमेंट कितना खर्च करती है, कैंडिडेट कितना करता है, तो 30,000 करोड़ आया। यानी एक वोटर पे 500 रुपया पड़ा। 500 रुपया एक वोटर पे खर्चा आया खाली वोट डालने के लिए, सोचो। सो सम पीपल से दैट इलेक्शंस आर अ बर्डन ऑन आवर पीपल। कुछ लोग सोचते हैं कि हमारे ऊपर भार है, बर्डन है। दैट आवर पुअर कंट्री कैन नॉट अफोर्ड टू होल्ड इलेक्शन वंस एवरी 5 ईयर। इसलिए हमारे इंडिया जो कि पुअर कंट्री में आता है, वो कैसे इतना खर्चा जो है सहन करेगा। हर 5 साल पे इलेक्शन कराएगा तो तब तो लूट जाएगा। सो लेट अस कंपेयर दिस एक्सपेंडिचर विद सम अदर फिगर्स। चलिए इस खर्चे को हम दूसरे फिगर से कंपेयर करते हैं। 2005 की बात है। आवर गवर्नमेंट डिसाइडेड टू बाई 6 न्यूक्लियर सबमरीन्स फ्रॉम फ्रांस। 2005 में हमारी सरकार ने 6 न्यूक्लियर सबमरीन फ्रांस से खरीदा, डिसाइड किया कि खरीदेंगे। इस सबमरीन कॉस्ट रुपीज़ 300 करोड़। एक सबमरीन का कॉस्ट, सबमरीन जानते हैं ना, पनडुब्बी जहाज जो था पानी में, उसमें न्यूक्लियर वेपन्स होते हैं, तो 3000 करोड़ का एक पड़ा। इसी तरह दिल्ली हॉस्टेड द कॉमनवेल्थ गेम। दिल्ली ने कॉमनवेल्थ गेम ऑर्गेनाइज किया 2010 में, और उस कॉमनवेल्थ गेम में कितना खर्चा आया? 20,000 करोड़, 20,000 करोड़। तो इसको देखते हुए क्या आपको लगता है कि इलेक्शन बहुत महंगा है? कहाँ महंगा हुआ, बहुत सस्ता है इलेक्शन इसको देख करके। 20,000 करोड़ है कि नहीं? तो जो है इससे हम लोग डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। नाउ वी कैन कम ऑन द टॉपिक नेक्स्ट एंड द लास्ट टॉपिक, दैट इज इलेक्टोरल रिजल्ट, ठीक है। इलेक्टोरल रिजल्ट्स, राइट। यहाँ हम आपको दिखाएंगे इलेक्शन रिजल्ट इन गुलबर्गा। ये गुलबर्गा एक जगह है जहाँ 2014 में, ये कर्नाटका में है, 2014 में यहाँ इलेक्शन हुआ। अ टोटल ऑफ 8 कैंडिडेट्स कॉन्टेस्टेड इलेक्शन। 8 लोग खड़े थे चुनाव में। एंड इन दैट कॉन्स्टिट्यूएंसी द टोटल एलिजिबल वोटर्स वर 17.21 लाख। तो 17.21 लाख लोगों को वोट डालना था और कैंडिडेट 8 हैं, ठीक। Of these 9.98 lakh voters had cast their votes। और 17.21 में से कितने लोग वोट डाले? केवल 9.98 लाख लोग ही वोट डाले। बहुत कम लोग वोट डाले हैं, जस्ट आधा मान लो, बाकी लोग घर में बैठे थे। सो द कैंडिडेट ऑफ द कांग्रेस पार्टी, उसका नाम था मल्लिकार्जुन खड़गे, उसने उसको जो है 5.07 लाख वोट मिला। मल्लिकार्जुन, इसका नाम था मल्लिकार्जुन, ठीक है, इतना वोट मिला। दिस वाज 50.82% ऑफ द टोटल वोट्स। इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं, टोटल वोट का ये 50.82% आया जो वोट पड़ा। बट सिंस ही हैड सिक्योर्ड मोर वोट्स, लेकिन उसने सबसे ज़्यादा वोट सिक्योर किया और इतना वोट किसी को नहीं मिला, इसीलिए उसको क्या किया गया? ही वॉज डिक्लेयर्ड एज इलेक्टेड मेंबर। उसको इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट डिक्लेयर कर दिया गया गुलबर्गा लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी से। और यहाँ पे आप देख सकते हैं 8 कैंडिडेट। एक है डीजी सागर, मल्लिकार्जुन खड़गे, दन्नी महादेव, रेवनाकी वेलमागी, बीटी ललिता, ये सब साउथ इंडियन नेम है। रामू एंड फिर कुछ नन ऑफ देम एवब होते हैं, NOTA, नन ऑफ दी एवब, उसको बोलते हैं नोटा, ठीक है। तो यहाँ आप देख रहे हो बड़े आराम से किस तरीके से जो है मल्लिकार्जुन 50,700 नहीं
हाँ 5,07,193 वोट्स उसको मिले, 50.82%। सबसे ज़्यादा इसी का वोट है, इसलिए जीत गया। ठीक है। सो व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ वोटर्स हु हैड एक्चुअली कास्ट देयर वोट। अब यहाँ हम कैलकुलेशन कर सकते हैं कि वोटर्स का परसेंट क्या है जिसने वोट एक्चुअली कास्ट किया। तो आप यहाँ देख सकते हो कि 9.98 लाख वोटर्स हैड कास्टेड देयर वोट, 9.98 लाख। ओके, तो इसको हम बड़े आराम से अगर पेन से इसको हम समझ सकते हैं कि कैसे जो है हमारा ये, देखो इसको हम निकालने के लिए क्या करें, 9.98 ऐसे लिखेंगे अपॉन टोटल हमारे 17.21। ठीक, ये हुआ, और इसको 100 से इंटू कर देंगे। ठीक, तो इससे हमें पता चल जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, हाउ मेनी परसेंटेज ऑफ वोटर्स हु हैड एक्चुअली कास्ट देयर वोट। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कितने परसेंट वोटर्स ने वोट कास्ट किया। ठीक है, तो ये भी लगभग 9 2 18 हो रहा है ना, लगभग 48 के आसपास आएगा, 48% अप्रॉक्स मैं बता रहा हूँ। ठीक है, आप कैलकुलेट कर लेंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर मिला। ये पूछ रहा था कि कितने वोटर्स ने वोट कास्ट किया, तो दैट हैज़ कम। क्लियर, सबको समझ में आ गया नाउ? ओके, लेट मी क्लियर इट। तो अब हम देखते हैं, इसी में कह रहा है कि टू विन एन इलेक्शन इज इट नेसेसरी फॉर अ पर्सन टू सिक्योर मोर देन हाफ द वोट्स पोल्ड। क्या जरूरी है वो इलेक्शन जीतने के लिए वो हाफ से ज़्यादा ही वोट पाए? ऐसा कोई नेसेसरी नहीं है ना। अब ये डिपेंड करता है कौन कैंडिडेट कितना वोट पाया। क्लियर। सो अर्लियर द वोटर्स यूज टू इंडिकेट हु दे वांटेड टू वोट फॉर पुटिंग अ स्टैम्प ऑन द बैलेट पेपर। पहले लोग क्या करते थे, बैलेट पेपर से वोट डालते थे, है ना, वोटर्स। उसमें जो है उनको जो है एक स्टैम्प होता था, बैलेट पेपर होता था, उस पर स्टैम्प लगा के डब्बे में डाल देते थे। सो अ बैलेट पेपर क्या होता है? अगर कोई पूछे व्हाट इज अ बैलेट पेपर, यू विल से अ बैलेट पेपर इज अ शीट ऑफ पेपर। पेपर का एक शीट होता है जिसपे क्या क्या लिखा होता है, नेम्स ऑफ द कॉन्टेस्टिंग कैंडिडेट। जो आदमी इलेक्शन लड़ रहा है, जितने लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं उनका नाम होता है, उनकी पार्टी का नाम होता है, उनकी पार्टी का सिंबल होता है। ठीक है, और उसी जिसको आपको चुनना है उसके ऊपर एक स्टैंप देते हैं, उसी को उसी के नाम के सामने स्टैंप लगा के और उस पेपर को फोल्ड करके और उस बॉक्स में डाल देते थे। लेकिन नाउ अ डेज इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स आर यूज टू रिकॉर्ड वोटर्स। यस, नाउ अ डेज इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, जिसको ईवीएम कहते हैं, अब उसका यूज़ किया जाने लगा है। पहले ये सब होता था, बहुत लेंथी प्रोसेस था। सो द मशीन शोज द नेम्स ऑफ द कैंडिडेट। उस मशीन पे कैंडिडेट का नाम लिखा रहता है, उसकी पार्टी का सिंबल लिखा रहता है, उसके सामने एक बटन रहता है, उसी बटन को दबाना है जिसको आपको जिताना है। सो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स टू हैव देयर ओन सिंबल। और कुछ लोग होते हैं जो निर्दल होते हैं, किसी पार्टी से इलेक्शन नहीं लड़ते, उनको इंडिपेंडेंट कैंडिडेट कहते हैं। उनको जो है अलॉटेड बाई उनका अलग इलेक्शन, जो उनका अलग सिंबल होता है। सो ऑल दैट द वोटर हैज़ टू डू इज टू प्रेस द बटन अगेंस्ट द नेम ऑफ द कैंडिडेट सी वांट्स टू गिव हर वोट। जिसको वोट देना है उसी के नाम के सामने का बटन प्रेस करेंगे ईवीएम मशीन में, और एक लाइट जलेगी, समझ लीजिए वो पड़ गया। So once the polling is over, all the EVMs are sealed and taken to secure place. एक बार वोट पड़ गया, सारी ईवीएम मशीन को सील कर दिया जाता है और एक सुरक्षित जगह पे ले जाके रख दिया जाता है। एंड अ फ्यू डेज लेटर ऑन अ फिक्स डेट, और उस एक फिक्स डेट के बाद सारे ईवीएम मशीन को कॉन्स्टिट्यूएंसी में खोला जाता है, उसके वोट्स को निकाल करके काउंट किया जाता है। The agents of all candidates are present there to ensure that the counting is done properly. और हर एजेंट को जो है ये इंश्योर हो जाता है कि काउंटिंग हो चुकी है प्रॉपरली। द कैंडिडेट हु सिक्योर्स द हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट्स फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूएंसी इज डिक्लेयर्ड इलेक्टेड। जो कैंडिडेट जिसको हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट्स मिले हैं वही इलेक्टेड डिक्लेयर होता है, उसी को घोषित किया जाता है कि ये चुन लिया गया है। सो इन अ जनरल इलेक्शन usually the counting of votes in all the constituencies takes place at the same time. एक ही समय में सारी जो है काउंटिंग होती है, एक ही दिन। टीवी चैनल, रेडियो, न्यूज़पेपर रिपोर्ट, ये सब इस इवेंट को दिखाते हैं टीवी पे, रेडियो पे, न्यूज़पेपर में भी अगले दिन आता है।
and within a few hours of counting all the results are declared and it becomes clear as to who will form the next government। और थोड़ी शाम को ही पूरा क्लियर हो जाता है कुछ ही घंटे बाद कि कौन चुन लिया गया है और अगली गवर्नमेंट कौन सी पार्टी बनाने जा रही है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस टॉपिक।